Welcome everybody. This is our first video in JEE Mains PYQ 4 chapter Laws of Motion of class 11th. Before this we have made JEE Mains series videos for previous three chapters, units and dimensions, motion in a straight line and motion in a plane. And all those are videos are available in our playlist. Name of the playlist is JEE PYQs, JEE Main PYQs on our channel Point Basics. We have also started similar series for NEET PYQs, so you can also check it out, and it is also available on our YouTube channel. And the name of the playlist is NEET PYQs. And if you found this stuff useful and helpful to you, then do like these videos, share these videos as much possible, and subscribe to our channel. And also, if you like to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can. With this amount we can get new books and better computer hardware, so that we will be able to provide you better qualities video. So with this, keep on sharing, keep on subscribing, and let's start today's video. Our This exercise contains around I think 75 questions. Yes, 75 questions, and we will solve them in around 3-4 videos, because I don't make videos too long so that you get bored. A video around 1 hour is more than enough for your daily practices. So they will be sold in 4 or max 5 videos at last. So let's start. So in first question, a particle moving in xy plane experience a velocity dependent force. So force की value दी गई है. Let me make slightly thinner. K times Vi plus Vxj. Vx and Vi are components of velocity. If acceleration A है, acceleration of the particle, तो ये बताना है कि कौन सी statement true है. V cross A is constant, F arises due to magnetic field, kinetic energy of the particle is constant, quantity V dot A constant. तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हो, ये बिल्कुल ही तीनों से अलग है कि F is arise due to magnetic field. बाकी में देखोगे आप तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी मींस वेलोसिटी इन्वॉल्व है, और क्वांटिटी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. तो मींस पहले व्हाट वी डू, द लॉजिकल प्रोसेस विल बी, हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उनके डॉट और क्रॉस से देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. सो एक्सेलरेशन इज क्वाइट इजी. ये फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी k by m टाइम्स vi प्लस vxj. तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास हो जाती है. नाउ अब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे. सो वी कैन राइट दैट ax इज इक्वल टू k by m into vy, एंड सिमिलरली ay हम लिख सकते हैं, इट विल बी k by m into vx. अब हमें वेलोसिटी पे जाना है, तो मींस हमें एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी पे जाना, सो वी हैव टू इंटीग्रेट. सो इट विल बी dvx by dt इज इक्वल टू km vy, और यहाँ से dvx इज इक्वल टू km vy dt, और सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं dvy इज इक्वल टू km vx dt. तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है. नाउ अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो नॉर्मल vy आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो dt आ जाएगा. सो ये मींस यहाँ पे कुछ मिसिंग है. सो व्हाट वी डू, हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देते हैं. जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, व्हाट वी गेट, dvx by dvy, k by m से k by m कैंसिल हो जाएगा, और हम vx को ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ से vi आएगा और यहाँ से vx आएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी कैन इंटीग्रेट, मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो vx dvx इज इक्वल टू vy dvy, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं.
तो जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स को, व्हाट वी गेट, vx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट vx square minus vy square is constant. So this is the relation we get in terms of velocity components. So हमारे पास एक रिलेशन तो आ गया, बट अभी ये रिलेशन हमारे लिए एनी हाउ यूजफुल नहीं है. सो व्हाट वी डू, हम वापस ऊपर जाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास एक बार क्रॉस प्रोडक्ट है, एक बार डॉट प्रोडक्ट है. सो सपोज अगर हम वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते, तो जो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, vxi प्लस vy j. और अगर हम इसका एक्सेलरेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट करते, और हम यहाँ पे कर पाएंगे बिकॉज एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी की टर्म्स है, सो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं नॉर्मली. सो व्हाट वी डू, इफ हम a डॉट v करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो k बाय m है वो एज इट इज आएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा vx इंटू वी वाई प्लस vx इंटू वी वाई, और इट इज km इंटू 2 vx बाय वी वाई. और हमारे पास इन दोनों के लिए कोई ऐसा रिलेशन तो है नहीं, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं. दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड. सो v क्रॉस a करते हैं, तो अगर हम v क्रॉस a करेंगे, व्हाट वी विल गेट, v इज vxi प्लस vyj क्रॉस k बाय m vyi प्लस vxj. सो यहाँ से k बाय m तो आउटसाइड आ जाएगा, i का i के साथ क्रॉस नहीं होता, ओनली j के साथ होगा. सो i क्रॉस j, इट विल बी vx स्क्वायर, i क्रॉस j विल बी k, और जब j की बारी आएगी, सो इस j का इसके साथ होगा, ये हम कर चुके हैं. अब इस j की बारी आएगी, सो vyj का vy i के साथ होगा, तो व्हाट वी गेट, vy स्क्वायर इंटू j क्रॉस i. जो j क्रॉस i होगा अगेन, वो आपको देगा माइनस के. सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. वी नो फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट कि अगर आपके पास, जब हमने i का i से किया क्रॉस तो 0, i का j से क्रॉस किया तो हमें k मिला, j का i से क्रॉस किया तो हमें माइनस k मिला, और j का j से क्रॉस किया तो हमें 0 मिलता है. सो फ्रॉम दिस वी गेट km vx स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर इंटू k. और अब हमें देखें, अगर हमने, हमारे पास ये टर्म पहले आ चुकी है, अगर आप देखते हो तो vx स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर इज कांस्टेंट. सो जो k बाय m है ये भी कांस्टेंट है, इनटू कांस्टेंट ऑफ k. सो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. एंड फ्रॉम दिस, अब अगर हम ऊपर जाके मैच करते हैं तो ये मेंशन है कि क्वांटिटी v क्रॉस a इज कांस्टेंट इन टाइम. सो दैट्स हाउ ये पूरी की पूरी क्वांटिटी टाइम के अंदर कांस्टेंट हो जाएगी. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. A spaceship in space sweeps interplanetary dust. As a result of its mass increases at dm by dt is a bv square. So dm by dt की वैल्यू हमें गिवन है bv स्क्वायर, और जो वेलोसिटी है वो भी यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करती है. और ये जो किस टाइप का क्वेश्चन है, ये है जो आपके पास वेरिएबल मास होता है रॉकेट्स के लिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आप जो फोर्स है, फोर्स को आप इजीली लिख सकते हो दैट माइनस ऑफ vg इंटू dm बाय dt. और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, मास को आप डिवाइड कर दोगे माइनस vg बाय m dm बाय dt. और ये जो माइनस vg है ये क्या होती है, रॉकेट के केस में ये होती है एग्जॉस्ट वेलोसिटी. जो एग्जॉस्ट होता है गैस, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया जाता है. तो ये वैल्यूज हम सॉरी एक्सेलरेशन होगा, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. माइनस vg बाय m dm बाय dt इज bv स्क्वायर
टी। और यहाँ पे अब अगर आप देखते हो तो ये वेलोसिटी v मेंशन की गई है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो रॉकेट के सिनेरियो में अगर आपके पास ये रॉकेट है तो अगर रॉकेट की अपवर्ड स्पीड v है तो जो एग्जॉस्ट है उसकी स्पीड डाउनवर्ड v होती है। अगर ये vg है तो ये अपवर्ड vg हो जाएगी। तो मींस अगर ये वेलोसिटी v है तो ये भी v हो जाएगी। सो इट विल बी माइनस v बाय m इंटू बी वी क्यूब t। So from this we can write, sorry, square minus bv cube by m। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो ये वेलोसिटी मेजर की जाती है नॉर्मली एग्जॉस्ट की मेजर की जाती है और वो ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही आएगा। सो फ्रॉम दिस जो हमारा आंसर बनता है इट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। A small ball of mass m is thrown upward with velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force. ये force दिए given है, v speed है इसकी। मैक्सिमम हाइट बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है एफ आर आप उसको बोल सकते हो, एफ फोर्स रेजिस्टिव, उसकी वैल्यू गिवन है एम के वी स्क्वायर। तो इससे जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी के वी स्क्वायर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है यू वेलोसिटी के साथ। तो इस पे नॉर्मली ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है और साथ में अब एक और फोर्स आ गया। सो इट इज एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं इसको नेगेटिव, यानी ये फोर्स था और ये एक्सेलरेशन। तो जिसका नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा ए डाउनवर्ड इट विल बी जी प्लस के वी स्क्वायर। ये इसका नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा। और नाउ हमें ये पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है, जब भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसने यू से स्टार्ट किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। मींस यहाँ पे हम जो भी करेंगे हम वेलोसिटी के साथ करेंगे और उसके लिए जो एक्सेलरेशन है उसको भी हम किसकी टर्म्स में लिख लेंगे, वेलोसिटी की टर्म्स में लिख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt equals to kg plus kv स्क्वायर। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर हम इस इक्वेशन को नॉर्मली इंटीग्रेट करने लग जाएं लाइक दिस, dv इज इक्वल टू जी प्लस के वी स्क्वायर डी टी। तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटीज के लिए तो वैल्यू है कि वेलोसिटी u से स्टार्ट हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है कि अगर यहाँ से टाइम जीरो से सम वैल्यू t तक जाएगा, बट वो t की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। सो हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालते हैं, बट हमें तो निकालनी हाइट की वैल्यू है, तो ये वाला इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। व्हाट वी डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, इसकी जगह पे जो हमारा इंटीग्रेशन है हम उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेंगे। उसमें हम चेन इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे दैट जो dv बाई dt है, ये dv बाई dt है, इसको हम dv बाई dx इंटू dx बाई dt की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इक्वल टू g प्लस के वी स्क्वायर। नाउ जो dx बाई dt होता है ये होता है वेलोसिटी। सो इट विल कम आउट टू v dv बाई dx इक्वल्स टू g प्लस के वी स्क्वायर। और नाउ अब हम इस dx को उधर लेके जा सकते हैं और ये पूरी की टर्म को dv के नीचे लेके आ सकते हैं बिकॉज ये इसमें वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा। सो v dv बाय g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx। और अगर अब हमारे लिमिट्स देखें तो वेलोसिटी u से स्टार्ट होती है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है और डिस्टेंस उसको ऊपर थ्रो किया गया था तो हाइट जीरो थी और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी हाइट h हो जाती है और उसी की वैल्यू हमें निकालनी है कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी। सो जो इसको आप जब सोल्व करोगे तो इससे तो हमें नॉर्मल h मिल जाएगा, h माइनस जीरो। नाउ कमिंग टू दिस,
ये जो आपका इंटीग्रेशन है इट इज ये है log का इंटीग्रेशन, और इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा ln g प्लस के वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ k, और यहाँ पे लिमिट्स हो जाएंगे u एंड 0। और अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है कि ये ऐसे क्यों आया, तो लेट मी एक्सप्लेन इन साइड कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स होता है तो यू नो कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। हमारे पास इसी टाइप की फॉर्म है कि 1 बाय समथिंग हमारे पास है, 1 बाय जी प्लस के वी स्क्वायर है। तो अगर आप इसका रिवर्स कर दो कि आप ये मान लो कि इसका इंटीग्रेशन जी प्लस के वी स्क्वायर आएगा, और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा 1 बाय जी प्लस के वी स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी जो कि कांस्टेंट है के वी स्क्वायर का 2v के, और ये बन जाता है 2v इंटू जी प्लस के स्क्वायर सॉरी इंटू 2k इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ ln जी के वी स्क्वायर। अगर दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ये इंटीग्रेशन इसको कैंसिल कर देगा, और ये जो 2k है इसको आप इधर ले आओ, और इंटीग्रेशन लगाया तो आपने इधर dx भी आएगा साथ में, सॉरी dv, और इधर लाइन लगा देते हैं तो इट विल बिकम 1 बाय 2k ऑफ ln g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू v dv g plus kv square. So this will be the final answer of integration. So यहाँ पे वापस आ जाते हैं। जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा h दिस साइड से, और यहाँ पे आप पुट करोगे तो इट विल बी 1 बाय 2k जो कि बाहर आ जाएगा। जब 0 पुट करोगे बिकॉज अपर लिमिट पहले पुट करनी है तो इट विल बी ln g, और जब u पुट करोगे इट विल बी ln g प्लस के यू स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 1 बाय 2k ln ऑफ g बाय g प्लस के यू स्क्वायर, एंड और हमने कि यहाँ पे स्टार्टिंग से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। व्हाट मिस्टेक? कि जो फोर्स था वो रेजिस्टिव फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस नेगेटिव थे। सो दोनों फोर्सेस नेगेटिव थे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे ये आप एक नेगेटिव साइन हर जगह लेके कंटिन्यूस करोगे इसको, और उस नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, और इससे वजह से ये जस्ट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सो इट विल बी जी प्लस के यू स्क्वायर बाय जी, ये आ जाएगी हाइट की वैल्यू। और अगर आप इसको ऊपर जाके कंपेयर करते हो सो 1 प्लस के यू स्क्वायर बाय जी, ये रहा 1 प्लस के यू स्क्वायर बाय जी। इन्होंने इसको थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिख दिया है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A ball thrown upward with initial velocity v naught from the surface of earth, the motion of ball is affected by a drag force। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें भी सेम वहीं पे हो रहा है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स वो लगा था हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स था, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टिव फोर्स है। यहाँ पे टाइम बताना है कि उसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया था सो दैट हमें टाइम कैलकुलेट ना करना पड़े, हमने टाइम को रिमूव कर दिया था चेन रूल लगा के। अब इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है v नोड, उसके पास जो डाउनवर्ड एक तो उस पर जी एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, और एक यहाँ से लगेगा बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स मेंशन है इट इज m गामा v स्क्वायर, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा गामा v स्क्वायर, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा गामा v स्क्वायर। सो जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड फोर्स इट विल बी नेगेटिव ऑफ m
बोथ एक्सेलरेशन g प्लस गामा v स्क्वायर, और यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट नेगेटिव ऑफ g प्लस गामा v स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv बाय dt। और बिकॉज बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गई है, जेनिथ पे गई है, तो जो वेलोसिटी है वो v नोड से 0 की तरफ जाएगी और टाइम है 0 से t की तरफ जाएगा। हम यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो dv by dt is equal to minus of g plus gamma v square, and from here dv by g plus gamma v square is equal to minus dt। और जस्ट अब हम इंटीग्रेशंस कर देंगे। ये v नोड से 0 पे जा रहा है और ये 0 से t पे जा रहा है। एंड सिमिलरली जैसे प्रीवियस में हुआ था इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे जो प्रीवियस वाले केस में था गामा वी स्क्वायर, यहाँ पे साथ में 2v था। देखेंगे अगर आप के वी स्क्वायर इंटू वी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 से डिवाइड कर सकते थे, तो हम यहाँ पे 2 बना सकते थे। बट इन दिस सिनेरियो यहाँ पे वो v नहीं है, तो हम इसको log वाले में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसका इंटीग्रेशन इफ यू नो, जो टेंजेंट इनवर्स x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वो फॉर्म है, तो हमको पहले इसको 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना होगा। तो फॉर दैट वी डू 0 v नोड dv, हम g कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस गामा बाय g इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इट विल बी जस्ट माइनस टी। और फिर से हम इसको आगे से लिख सकते हैं v नोड 0 dv, जो g है उसको बाहर ले लेते हैं, 1 बाय g 1 प्लस अंडर रूट गामा बाय g इंटू वी होल स्क्वायर। तो हमने अब ये वाली फॉर्म यहाँ पे बना दी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा इट विल बी 1 बाय g एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और जो x है वो ये वैल्यू है, सो रूट गामा बाय g इंटू वी, और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा जो ये है इसका विद रिस्पेक्ट टू v, बिकॉज हम v के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाले पार्ट का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उससे डिवाइड, तो दैट विल बी अंडर रूट गामा बाय g। दिस इज, ये बेसिक इंटीग्रेशंस हैं और आप इसको मैथमेटिक्स में सीख पाएंगे अपने, अगर आप थोड़ा वहाँ पे फोकस करें। और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स हैं v नोट टू 0 और ये इक्वल टू है माइनस टी। सो जब हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा, रूट जी बन जाएगा, और रूट जी इस जी को कैंसिल करेगा, तो इट विल बी अंडर रूट आर जी टेंजेंट इनवर्स आर बाय जी इंटू वी, लिमिट्स वी नोट टू 0, और ये किसके इक्वल है, माइनस टी के इक्वल है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो माइनस ऑफ टी, जब आप यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 0 0, सो 0 माइनस v नोड यहाँ पे आ जाएगा, सो इट विल बी अंडर रूट आर जी टेंजेंट इनवर्स रूट आर जी वी नोड, और फ्रॉम हेयर जो टाइम है, टाइम की वैल्यू आर जी टेंजेंट इनवर्स आर जी वी नोड। तो जब हम कंपेयर करते हैं ऊपर जाके,
सो जो हमारा आंसर है दैट इज हमने वो गामा जी है, हमने आर जी बोल दिया उसको। सो गामा जी टेंजेंट इनवर्स, हाँ टेंजेंट इनवर्स गामा जी इंटू वी नोट। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज जेड एक्सिस, सो जेड एक्सिस में थ्रो किया गया उसको फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम हमें ये बताना है। तो जब हमने उसको ऊपर थ्रो किया है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, टाइम के साथ, बिकॉज बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब हाइट उसकी हाईएस्ट हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब मोमेंटम भी जीरो। तो अगर आप सभी ग्राफ्स में देखते हो कि एट हाईएस्ट पॉइंट जब हाइट अपने मैक्सिमम पे है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये वाली जो मेथड है वो सभी के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ अगर हम मोमेंटम वर्सेस हाइट को प्लॉट करें तो हमारे पास रिलेशन ये होता है दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो फ्रॉम हेयर हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी v की वैल्यू इट विल बी 2gh प्लस यू स्क्वायर इंटू होल रूट, और यहां से मोमेंटम बन जाएगा मास टाइम्स 2gh प्लस यू स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हो जो मोमेंटम है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मास कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और जो हाइट है वो भी कांस्टेंट है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और यू स्क्वायर के उसके ऊपर हमारे पास एक अंडर रूट वैल्यू है, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे जो हाइट है वो नेगेटिव होगी बिकॉज जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट विल बी -2gh, सॉरी। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m यू स्क्वायर -2gh। हाइट नेगेटिव क्यों होगी, बिकॉज जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जो एक्सेलरेशन है वो आप नेगेटिव लेते हो। मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन और हाइट में दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है। तो या तो अगर आप जी को पॉजिटिव मानते हो तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप एच को पॉजिटिव मानते हो तो जी नेगेटिव हो जाएगा। तो इन बोथ सिनेरियोज ये आपके पास -2gh ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो मोमेंटम है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये तो चीजें तो हमारी कांस्टेंट है, टू और जी तो कांस्टेंट है, और ये एच क्या है, जो आपने टाइम को जो जितनी हाइट हम फॉलो कर चुके हैं, जितनी हाइट तक हम पहुंच चुके हैं। सो यहाँ से पी और अगर एच में ग्राफ बनाना जाए, पी और एच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो आपके पास एक कर्व्ड ग्राफ आएगा, बिकॉज स्क्वायर डिपेंडेंस है, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट तो है। उसका मीनिंग ये नहीं कि ये अंडर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बिकॉज यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन भी है। तो जो डिपेंडेंस होगी वो कर्व की डिपेंडेंस आएगी, मींस समथिंग लाइक दिस। लीनियर डिपेंडेंस तो नहीं आएगी। तो जो लीनियर वाले हैं ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं। और जो ये वाला ग्राफ है, अगर आप पहले वाला ग्राफ देखो ऑप्शन ए, तो इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, अगर आप ऑप्शन ए में देखते हो तो आप यहाँ पे ये पाओगे कि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, बिकॉज ये कर्व ऐसे जा रही है। तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव है और उसके बाद एट लास्ट मोमेंटम पॉजिटिव हो गया। जबकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है स्टार्टिंग में, तो ऊपर की तरफ की वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है। ऊपर की डायरेक्शन की वेलोसिटी को, अपवर्ड को वेलोसिटी को पॉजिटिव माना जाता है। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम पॉजिटिव है। सो ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन डी बचता है, जो हमारे पास कर्व को भी फॉलो करता है और उसमें स्टार्टिंग मोमेंटम पॉजिटिव है, और जब बॉल वापस नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, तो यानी कि नेगेटिव मोमेंटम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम p स्टार्टिंग एट टाइम t, जो फोर्स है kt acts on the same direction as moving particle during the time interval t, so that momentum changes from p to p की 3p। द वैल्यू k इज कांस्टेंट, तो टाइम बताना है कि टाइम कितना हुआ। सो फोर्स लगा है kt और मोमेंटम चेंज हो गया p टू 3p। तो हमें यह पता है
दैट जो F होता है इट इज इक्वल टू dp बाय dt, और यहाँ से वी कैन राइट दैट dp इज इक्वल टू f dt। सो अगर बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो हम p से स्टार्ट हुए और 3p तक गए, और टाइम 0 से स्टार्ट होते हैं और कैपिटल T तक पहुंचते हैं। सो इट विल बी 3p माइनस p इक्वल्स टू 0 to t, f is kt into dt, so it is kt square by 2, limits time 0 is equal to 2p, so 2p is equal to kt square by 2, और यहाँ से अगर t की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी 4p by k under root, so it will be twice of under root p by k, twice of under root p by k, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is acted upon by force given by empirical law, so force के लिए फॉर्मूला गिवन है r by t square into v of t, if this law to be tested experimentally by observing the motion starting from the rest, यानी कि रेस्ट का मतलब है u is equal to 0, the best way to plot, तो हमें प्लॉट करना है, और आप यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है या 1 बाय टाइम का प्लॉट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से वेलोसिटी और ओनली टाइम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है। सो व्हाट वी डू, हम फोर्स को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करते हैं और एक्सेलरेशन से फिर से इंटीग्रेशन करते हैं वेलोसिटी की टर्म में। सो ये हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर इंटू वी, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आर बाय एम इंटू वी बाय टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ से डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू आर बाय एम वी बाय टी स्क्वायर। अब इसको फर्दर यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें वी और टी में ही चाहिए, तो कोई चेन रूल नहीं यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। सो इट विल बी डी वी बाय वी इक्वल्स टू आर बाय एम 1 बाय टी स्क्वायर ऑफ डी टी, तो इंटीग्रेट करते हैं अगर दोनों साइड को तो इट विल बी एल एन टी, सॉरी एल एन वी इक्वल्स टू आर बाय एम इज कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इट विल बी माइनस 2t माइनस 1, एंड प्लस में अगर कोई कांस्टेंट आएगा तो हम उसको अभी इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमें ग्राफ की बात करनी है। सो इट विल बी एल एन वी माइनस 2r बाय एम इंटू 1 बाय टी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखते हो कि अगर आपको स्ट्रेट ग्राफ चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए हम क्या प्लॉट करेंगे, एल एन वी वर्सेज 1 बाय टी को प्लॉट करेंगे अगर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए, और दिस इज द ऑप्शन एल लॉग वी टी अगेंस्ट 1 बाय टी। हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया और यहाँ पे लॉगरिथम 10 बेस वाला लिया गया, शायद नहीं ये भी नेचुरल ही है, अगर 10 बेस होता तो यहाँ पे लिखा होता। सो वट एवर कोई इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों एक दूसरे के मल्टीपल ही होते हैं 2.3 टाइम्स। सो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे एल एन की जगह log 10 भी लिखा होता तो भी आप यही रिलेशन यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large number of identical beads each of mass m and radius r are strung on a thin smooth rigid horizontal rod of length r l, तो ये टोटल लेंथ l है, एंड आर एट रेस्ट एट रैंडम पोजिशंस, वो जो इसमें इसके ऊपर बीड्स हैं जो सभी सभी रैंडम पोजिशंस पे हैं। रोड इज माउंटेड बिटवीन टू रिज स्पॉट्स, सी फिगर, ये दो रिज स्पॉट्स पे है। If one of the bead is now given speed v, the average force experienced by each support after long time, assuming all collisions are elastic. So suppose कीजिए हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सो दैट आपको एक्सप्लेनेशन कर पाए। ये हमारे पास दो
यहाँ पे जो ये रोड्स हैं, सपोर्ट्स, ये हमारे पास दो सपोर्ट्स हैं और उनके बीच में हमारे पास एक ये रोड बंधी हुई है और इसके ऊपर हमने कुछ मासेस यहाँ रखे हुए हैं। ये सपोज 1 2 मीन्स ये इसको क्रॉस होके जाते हैं और इनमें से किसी एक को हमने रैंडम वेलोसिटी दे दी। सपोज हमने इसको वेलोसिटी दे दी तो ये इसको जाके टकराएगा। जब ये इससे टकराएगा तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और ये इससे जाके टकराएगा और ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और ये फिर दीवार से जाके टकराएगा और फिर वापस आएगा और ये पूरा प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा। नाउ हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज फोर्स। सो जो फोर्स होता है, फोर्स के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो एक तो हमें यहाँ पे मोमेंटम का चेंज निकालना है और दूसरा हमें यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा वो मोमेंटम को चेंज होने में। और यहाँ पे देखिए साथ में ये दिया गया है लॉन्ग टाइम, मीन्स हमें लॉन्ग रेंज वाला यहाँ पे एवरेज आउट करना है फोर्स को। तो सबसे पहले मोमेंटम की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए जो ये पार्टिकल है ये एम वी मोमेंटम से यहाँ पे जाता है और बिकॉज ये लिखा हुआ है कि सभी कोलिजन इलास्टिक है तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो कोई लॉस नहीं होगा और ये एम वी से ही वापिस आ जाएगा। मीन्स जब ये जा रहा था तब इसकी वेलोसिटी वी नोट थी, जब ये वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी माइनस वी नोट हो जाएगी और इन शॉर्ट जो डेल्टा पी होगा इट विल बी 2mv नोट। मोमेंटम इज जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज 2mv नोट। नाउ कमिंग टू अब हमारे पास रहता है टाइम। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है, कि जो ये पार्टिकल है इसको कितना एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे चलना पड़ा जब ये टकराया और ये फिर वापस आया, तो उससे हमें एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगा और हमें इसकी वेलोसिटी पता ही है वी नोट और उससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ये माने जो कि यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ बीड्स हैं, n नंबर ऑफ बीड्स, टोटल लेंथ l है तो एक बीड की रेडियस r है तो एक बीड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक बीड कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा। अगर ये बीड है तो ये कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा इस रोड के ऊपर, 2r। ऐसे अगर n बीड्स हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर ऑक्यूपाई कर लेंगे, 2nr डिस्टेंस तो बीड्स ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जो फ्री स्पेस होगा इस रोड के ऊपर, जो फ्री एम्प्टी स्पेस है दैट विल बी l माइनस 2nr। तो ये तो हो गया जो हमारे पास फ्री स्पेस है जो एक बीड मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है। नाउ ये फ्री स्पेस सभी के लिए कॉमन है, मींस यहाँ पे मैक्सिमम फ्री स्पेस इतना अवेलेबल है तो हम इसको भी एवरेज आउट करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ बीट्स हैं तो टोटल फ्री स्पेस इतना है तो एवरेज फ्री स्पेस हो जाएगा, जो एवरेज फ्री स्पेस हो जाएगा इट विल बी, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज फ्री स्पेस। मींस ये जो बीड है यहाँ पे इसका और दीवार का एवरेज फ्री स्पेस इतना है तो ये दीवार पे जाएगा, टकराएगा और वापस आएगा तब इसके बीच में फिर यहाँ से इसके पास कोलिजन हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ, कि ये आपका बीड है और इनके बीच का एवरेज स्पेस इतना है तो ये यहाँ पे जाता है, टकराता है और फिर वापस आता है तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, इसका ट्वाइस। या पहले हम यहाँ से सिर्फ इतना जो फ्री स्पेस है इसको कैलकुलेट करने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ट्रेवल करने के लिए जो टाइम होगा ये फ्री स्पेस के लिए, तो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, सो इट विल भी हो जाएगा l 2nr बाय n इन डिवाइड बाय v नोट। और बिकॉज जो टाइम है वो एक बार कोलिजन करने का है और एक बार वापस आने का है तो इस टाइम को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास टोटल टाइम आ सके। और अब हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास मोमेंटम है, सो हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ mv नोड डिवाइड
twice of L 2nr into nv node. So mv node into nv node square L minus 2r. तो ये हो जाता है एवरेज टोटल फोर्स ऑन बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। और यहाँ पे बोला गया कि एवरेज फोर्स काउंट करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर हमें एवरेज फोर्स काउंट करना है तो ये तो एन के लिए हो रहा है फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली एक पार्टिकल के लिए निकालते हैं तो ये एन के लिए, अगर हम एक के लिए निकालते हैं तो उसको एन से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी जस्ट mv नोट स्क्वायर बाय l माइनस 2nr। एंड फ्रॉम दिस अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स गिवन है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 गिवन है एंड t इज इक्वल टू 10 वेलोसिटी ये है। तो फोर्स की वैल्यू बतानी है कि फोर्स कितना है। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू है 6i माइनस 2j और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू है 6j और i का कंपोनेंट 0 हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट, हमें ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन प्लस टाइम। और यहाँ पे जो अगर हम i के लिए देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 थी x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन के लिए अगर हम सोल्व करें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 6 थी प्लस एक्सेलरेशन वी विल कैलकुलेट, टाइम है 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है 0.6 एंड ये हो गया ax, सॉरी ax। ऐसे ही अगर y डायरेक्शन में देखें तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है -2 और फाइनल वेलोसिटी है 6। सो 6 इज इक्वल टू -2 प्लस ay इंटू टाइम इज 10। सो जब आप इसको देखोगे तो इट विल बी 6 + 2 8 इज इक्वल टू ayt इंटू 10। सो ay विल बी 0.8। तो जो एक्सेलरेशन आ जाता है इट विल बी 0.6i प्लस 0.8j और फोर्स आ जाएगा, आप इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास इज 5 kg। सो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 3i और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 4j न्यूटन। एंड यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हमने कि ये इधर आके नेगेटिव होगा। सो ये -0.6 होगा, ये माइनस और ये माइनस रहेगा। सो -3i प्लस 4j एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Next question. Say particle of mass m is at rest at the origin in time t is equal to 0 is subjected to force। ये फोर्स है x डायरेक्शन में जो लग रहा है। वेलोसिटी बतानी है कि कौन सी कर्व को फॉलो करेगी। तो हमारे पास फोर्स है तो हमें पहले उससे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग इंटीग्रेशन। सो लेट अस डू f नोड e माइनस bt और फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नोड ई माइनस बी टी और एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ नोड माइनस बाय एम इंटू ई माइनस बी टी और ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ नोड बाय एम ई माइनस बी टी और डी वी विल बी एफ नोड एम ई माइनस बी टी इंटू डी टी। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो dv से तो हमें ओनली वेलोसिटी मिलेगी, ये एफ नोट बाय एम। इसके केस में e माइनस बी टी और इसको जो डिवाइड होगा इट विल बी माइनस बी से डिवाइड होगा, बिकॉज जब अगर आप e माइनस बी टी को इंटीग्रेट करते तो वहां पे साथ में माइनस भी आता और सो डिफ्रेंशिएट करते तो माइनस भी आता, तो इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स होंगी
टाइम की t 0 to t, जैसे इसमें लिमिट थी 0 to v। सो f नोड बाय m, और जो b है वो भी आप बाहर ले सकते हो, 1 माइनस बी। सो e माइनस बी टी माइनस e 0, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इट विल बी f नोड बाय m b, ये 0 होगा, सॉरी 1 होगा, e रेस्ट पावर 0 इज 1, और इसको आप आगे ले आओगे सो दैट माइनस एडजस्ट हो जाए, सो इट विल बी 1 माइनस बी टी। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। नाउ कमिंग टू ग्राफ्स। अब अगर हम टाइम को क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम टाइम को 0 पुट कर देते हैं। अगर टाइम 0 हो जाता है तो e रेस्ट पावर 0 हो जाएगा, और अगर e रेस्ट पावर 0 हो जाता है तो 1 माइनस 1 0, और वेलोसिटी आ जाती है 0। मीन्स जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और अगर आप देखते हैं तो सभी के सभी कर्व्स में वैसा हो रहा है। नाउ ये हमने वन एक्सट्रीम एंड ले लिया, अब दूसरा एक्सट्रीम एंड लेते हैं जब टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो जो ये वाली इक्वेशन है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ नोड एम बी 1 माइनस 1 बाय ई बी टी। अब बिकॉज ई एक्चुअल एक नंबर है, ये 2.31 होता है, और उसकी पावर को आप इनफाइनाइट कर दोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो इट विल गिव अस 1 माइनस 0 इज 1 एफ नोड बाय एम बी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे ये वैल्यू आएगी मैक्स। तो अगर हम देखें तो जब इनफाइनाइट टाइम है उसमें ये वैल्यू सिर्फ एक ग्राफ में आ रही है। यहाँ पे देखिए जो आपका ग्राफ है वो इस वैल्यू से एक्सीड कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ लिमिटेड टाइम पे यहाँ पे पहुंच जा रहा है, और ये वाला ग्राफ भी लिमिटेड टाइम पे यहाँ पे पहुंच जा रहा है। तो ओनली ऑप्शन बी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इनफाइनाइट टाइम वाली बात पॉइंट को। सो दैट्स वाई जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question has statement 1 and 2 of 4 choices. Statement 1 best describe the statement 2. So if you push one cart being pulled by a horse, so it does not move, the cart pushes back with an equal and opposite force. Means suppose कीजिए कि ये कार्ट है और इसको आपने पुश किया और आप इसको पुश नहीं कर पाए। मीन्स जो आपने फोर्स लगाया था इस पे एफ, कार्ट ने उतना ही फोर्स आप पे वापस लगा दिया एफ, और दैट्स वाई दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल हो गए और आप उसको पुश नहीं कर पाए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है द कार्ट डज नॉट मूव बिकॉज द फोर्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट कैंसिल ईच अदर। तो और ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यस ये भी ट्रू है। सो इसका आएगा ऑप्शन ए, वन भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, और जो वन है उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड है, बिकॉज फर्स्ट में हमने यही बताया कि जब हमने उस पर एफ लगाया तो उसने हम पे एफ लगा दिया और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यही सेकंड स्टेटमेंट है। सो दैट्स हाउ सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है और वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। नाउ two fixed frictionless inclined planes make angle 30 degree and 60 degree with vertical as shown in the figure. Two blocks A and B are placed in two planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? तो हमें A का B के रिस्पेक्ट में वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालना है, और वर्टिकल का मीनिंग होता है अपसाइड डाउन। तो हमें ये वाला एक्सेलरेशन रिलेटिव फाइंड आउट करना है। So let us make this diagram. तो एक तो हमारे पास ये है पहले वाला, और फिर हम एक दूसरा बना लेते हैं।
जिसमें 30 डिग्री है सपोज, ये ऐसे है। नाउ यहाँ पे जो ए है, ए का हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे, ए का मास mg ऐसे एक्ट करेगा, और यहाँ पे होगा mg cos थीटा, और यहाँ पे होगा mg sin थीटा। और अगर हम b के लिए देखें तो b के लिए भी ऐसा ही होगा, ये mg होगा, और अब हम ओनली एक्सेलरेशन की टर्म में लिखेंगे तो ये होगा इसके लिए g sin थीटा, ये फाई लिख लेते हैं, और ये होगा g cos फाई, और एंगल्स दे देते हैं यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। तो जो फर्स्ट है इसके लिए जो एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेशन है वो ऐसे इंक्लाइंड है, और वो एक्सेलरेशन कैसे है, ऐसे है, और उसकी वैल्यू है g sin 60, और ये जो इंक्लाइंड का एंगल है यहाँ पे ये 60 डिग्री। जो दूसरा वाला है उसके लिए भी एक्सेलरेशन ऐसे ही इंक्लाइंड है, और ये 30 डिग्री पे है, और इसका एक्सेलरेशन है g sin 30। तो अगर हमें इसका ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना होता तो हम दोनों को माइनस करके रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, बट हमें पूछा गया है कि रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, हमें इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में फिर से रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे, लेट मी शो। जो हमारे पास ये वाला एक्सेलरेशन है, अगर हम इसका ये डाउनवर्ड कंपोनेंट निकालें तो हमें ये पता है कि जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री है। तो अगर इसका हम ये वाला कंपोनेंट निकालने लग जाएं तो व्हाट विल बी दैट कंपोनेंट, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट होगा कोस में, तो ये वाला कंपोनेंट फिर से साइन में आएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो दैट कि अगर हम इसको यहां से रब कर दें और हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये जो वाला हमारा है, दिस इज g sin 60। तो लेट मी राइट इट प्रॉपर वे। तो ये कंपोनेंट है g sin 60, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा g sin 60 cos 60, और ये कंपोनेंट हो जाएगा g sin स्क्वायर 60। इसके लिए भी ऐसा ही होगा कि जो आपका ये कंपोनेंट है, जो ये एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है g sin 30। अब अगर हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा देते हैं तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, पैरेलल लाइंस। सो जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इट विल बी g sin स्क्वायर 30। तो हमारे पास दोनों के वर्टिकल एक्सेलरेशंस आ गए। अब हम यहाँ पे दोनों को माइनस करके रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इट विल बी g sin स्क्वायर 60 माइनस g sin स्क्वायर 30, और यहाँ से आ जाएगा g इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 60। तो साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे आप तो 3/4 आएगा, और ये साइन 30 है, इसका स्क्वायर करोगे आप 1/4 आएगा। सो फ्रॉम दिस बोथ, इन दोनों से आप सब माइनस करोगे इट विल बी 2/4 और 1/2, और g की वैल्यू हम अगर 9.8 लें तो इनटू डिवाइड 1/2 तो 4.9 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास दो ऑप्शन है 4.9 में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, और हमने वर्टिकली कैलकुलेट किया है, सो आंसर विल बी वर्टिकल। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना होता तो हम दोनों को यहाँ पे दोनों को माइनस कर सकते थे। हॉरिजॉन्टल के केस में ये आ जाएगा g sin 60 cos 60 माइनस g sin 30 cos 30, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बॉल ऑफ 0.2 kg is thrown vertically upward by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and ball goes 2 meter high further, find the magnitude of the force। तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ ऐसे लगेगा दैट कि जो बॉल है वो हैंड में है, सपोज ये
लेट मी चूज डिफरेंट कलर कि ये जो येलोइश कलर है या ऑरेंज कलर है ये हैंड को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर है जो ये बॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट 2 सेकंड ये 0.2 मीटर के लिए इसको आप ऐसे ऊपर लेके जाते हो बाय हैंड और उसके बाद क्या होता है आप इसके साथ अपना हाथ से इसको लीव कर देते हो और ये बॉल ऊपर जाती है 2 मीटर तक जाती है। तो स्टार्टिंग में एज यूजुअल बॉल किस पे थी, रेस्ट पे थी। उसके बाद आप एक्सेलरेट करते हो बॉल को कब तक, 0.2 मीटर तक। तो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट कितने डिस्टेंस तक होता है, 0.2 मीटर तक एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद बॉल के ऊपर कोई वेलोसिटी आ जाती है v, और इस वेलोसिटी की वजह से वो बॉल कब तक मूव करती है, 2 मीटर और ऊपर तक जाती है। तो अगर यहाँ पे इस बॉल के पास कोई वेलोसिटी है, सपोज v है, और ये ऊपर जाती है कहां तक, 2 मीटर तक, और उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, तो हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g(s). तो ये जब बॉल को हाथ से यहाँ से इस पॉइंट पे बॉल को हाथ से छोड़ा गया और इसके बाद बॉल अकेली मूव कर रही है, तो जब बॉल अकेली मूव कर रही है तो उस पर ओनली एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब तक यहाँ पे बॉल के पास साथ हाथ लगा हुआ था तो यहाँ पे बॉल का एक्सेलरेशन कंप्लीटली डिफरेंट था, बट जब बॉल को हाथ से छोड़ दिया गया और अब बॉल फ्रीली ऊपर जा रही है तो उस पर ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम v1 बोल देते हैं सो दैट हम कंफ्यूज ना हो u और v में, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v1, सो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन -10 है और s की वैल्यू 2 है, सो यहाँ से आ जाता है -v1 स्क्वायर इज इक्वल टू -40 और v1 इज इक्वल टू √40। मीन्स इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी ये थी, और यहाँ से बॉल ने जब स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो अगेन सेम इक्वेशन का यूज किया जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज कोई एक्सेलरेशन था a, तो फाइनल वेलोसिटी है √40, सो √40 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, सो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन, और कितना डिस्टेंस था जो हाथ में मूव किया था, दैट इज 0.2 यानी कि 2/10, सो इट विल बी 40 इज इक्वल टू 4a/10, और यहाँ से आ जाता है 10, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाता है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, आपके पास मास गिवन है 0.2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो इट विल बी 20 न्यूटन का फोर्स। सो दैट्स हाउ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बेसिक फिनोमेना क्या लिया कि जब तक बॉल हैंड में थी हम उस पर कोई एक्सेलरेशन था, और जब हमने इस पॉइंट पे आके इस लेवल पे आके उसको रिलीव कर दिया तो उस एक्सेलरेशन की वजह से उसके पास कोई वेलोसिटी थी v1। नाउ अब ये बॉल फ्रीली मूव कर रही है ऊपर की तरफ और 2 मीटर तक की हाइट कवर करती है, तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी v1 अज्यूम कर लें तो फाइनली बॉल जब ऊपर तक पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करके 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If catching process is completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player. तो यहाँ पे जस्ट हमें फोर्स निकालना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बिकॉज जब बॉल को कैच कर लिया जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास 150/1000 इंटू वेलोसिटी दैट इज 20 बाय टाइम इज इक्वल टू 1/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 50 इंटू 2 इंटू 10/10, आंसर विल बी 30 न्यूटन। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
A particle of mass 0.3 kg subjected to a force F is equal to minus kx, or yes, minus kx, और k की वैल्यू गिवन है 15, so minus 15 into x. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? अगर उसको 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन से छोड़ा गया है तो उसका इनिशियल एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो अगर वो 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? -50 इंटू 20 सेंटीमीटर, बिकॉज फोर्स इज के एक्स एज पर फॉर्मूला, और ये हो जाएगा -3 न्यूटन। और हमारे पास फोर्स आ गया तो इसको हम मास से डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, सो -3 बाय 0.3, तो इट विल बी 10 और -10 meter per second square. So option C will be the right answer. So with this we have completed up to question number 15, and hopefully ये आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, और जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। एंड वी विल बी बैक विद मोर क्वेश्चंस, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आल्सो इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमें डोनेट कर सकते हैं। इससे हमें बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।